This is Dr. Anjana Verma, Assistant Professor, Faculty of Education, Diyalbagh Educational Institute, Deemed University, Diyalbagh, Agra. So today we will discuss the course Safety and Disaster Management. We will discuss Unit 3, Safety at Workplace, and the topic of today's discussion is Brief Introduction to OSHA. So first of all, we will discuss the OSHA. Who are they? What do they do? And what should you expect when they come to your site? So let's start with the introduction. In 1970, the United States Congress and President Richard Nixon created the Occupational Safety and Health Administration, OSHA, a national public health agency dedicated to the basic proposition that no workers should have to choose between their lives and their jobs. It is the federal agency responsible for protecting the health and safety of workers at workplace. So here OSHA stand for OSHA means O for occupational, S for safety, H for health, and A for administration. OSHA assures safe and healthful conditions for working men and women by setting and enforcing standards and providing training outreach, education, and compliance assistance. Under the OSHA law, employers are responsible for providing a safe and healthful workplace for their workers. OSHA is committed to protecting workers from the toxic chemicals, means जहरीले पदार्थों से बचाने के लिए OSHA committed है workers को at the workplace and deadly safety hazards at work and providing employers with vigorous compliance assistance to promote best practices that can save lives. So overall अगर OSHA का हम meaning समझें, number one, it work for to save life of workers, especially at workplace. ये उनको इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि वो अवेयर हो सके अपने वर्क प्लेस पे. ये उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए मदद करता है. देन एम्प्लॉयर्स के लिए अकाउंटेबिलिटी भी तय करता है कि हाउ दे कैन वर्क फॉर देयर वर्कर्स. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ OSHA? Worker safety, inspection, enforce workers' right, employers' accountability, and reduce workers' fatalities. Overall, OSHA standards include the toxic substances, hazardous substances, electrical hazards, then fire hazard, false and slips, infection diseases. So, what are the rights and responsibilities under OSHA law? Employers have the responsibility to provide a safe workplace. तो सबसे पहले जो राइट है, इनका जो अधिकार है या जो कर्तव्य है वो ये कि अपने वर्कर्स को सेफ वर्कप्लेस दें. Employers must provide their workers with a workplace that does not have serious hazards and must follow all OSHA safety and health standards. हर एम्प्लॉयर को ये ध्यान रखना चाहिए कि उस स्थान पर जो कार्यस्थल है वहाँ पर कोई भी गंभीर खतरे ना हो जिससे कि कार्यकर्ताओं की जान को या उनके स्वास्थ्य पे कोई गंभीर असर पड़े. इसके लिए उन्हें OSHA के सभी जो सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना होता है. OSHA further required that employers must first try to eliminate or reduce hazards by making visible changes in working conditions rather than relying on personal protective equipment such as mask, gloves, helmet, etc. OSHA एक्सपेक्ट करता है कि सबसे पहले तो जो भी एम्प्लॉयर है वो अपने वर्क प्लेस से जो वर्किंग कंडीशंस है वहाँ पे उसे देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या हजार्डस अवेलेबल है. तो या तो उनको वो एलिमिनेट करे, फर्स्ट एफर्ट होना चाहिए कि उनको एलिमिनेट किया जाए, अदरवाइज उनको रिड्यूस किया जाए, बजाय इसके कि हम अपने कार्यकर्ताओं को, हम अपने वर्कर्स को मास्क, ग्लव्स और हेलमेट दे दो और हम कहें उनसे कि अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम काम कर सकते हो. सो दे मस्ट फर्स्टली ट्राई टू एलिमिनेट द हैजार्ड्स. Then what are the other rights? Employers must find and correct safety and health problems. Employers को ध्यान रखना चाहिए या अटेंटिव रहना चाहिए कि उनके वर्कर्स की हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, whether it is
हजार्डियस कंडीशंस, जो भी वहाँ पे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे खतरे, संभावित खतरे हो सकते हैं, उनका पता लगाना चाहिए। नोटिफाई ओसा ऑफ इंजरी एंड इलनेस प्रॉम्प्टली, अगर कोई इंजरी या इलनेस हो गई है तो तुरंत नोटिफाई कराना चाहिए ओसा को। देन डिस्प्ले ओसा पोस्टर्स, हर एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो अपने एजेंसी में ओसा के जो पोस्टर्स हैं उनको डिस्प्ले करें, सो दैट वर्कर्स कैन अंडरस्टैंड देयर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्कर्स को मालूम हो सके कि उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और इमरजेंसी के टाइम पे उनकी बेस्ट हेल्प कैसे हो सकती है। Employers must also inform workers about chemical hazards थ्रू, केमिकल हजार्ड्स के लिए उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनको सूचनाएं दे सकते हैं, किसके थ्रू? थ्रू ट्रेनिंग, लेबल, अलार्म, कलर कोडेड सिस्टम, केमिकल इंफॉर्मेशन शीट एंड अदर मेथड्स। देन प्रोवाइड सेफ्टी ट्रेनिंग टू वर्कर्स इन अ लैंग्वेज एंड वोकेबुलरी दे कैन बेटर अंडरस्टैंड, उनको उसी भाषा में ट्रेनिंग देनी चाहिए जो कि उनकी जिसको वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। प्रोवाइड रिक्वायर्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एट नो कॉस्ट टू वर्कर्स, हर वर्कर को जो पीपीई किट है वो बिल्कुल मुफ्त देनी चाहिए। कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ वर्कर रिलेटेड इंजरीज एंड इलनेस, अपने सभी वर्कर की जो भी घटनाएं हुई हैं, जो इंजरीज उनको हुई हैं या उनकी कोई अगर इलनेस है, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड उनको रखना चाहिए। सो नाउ हु इज कवर्ड अंडर ओसा, ओसा किन किन को कवर करता है अपने रेगुलेशन में या अपने रूल्स या स्टैंडर्ड्स में? ऑलमोस्ट ऑल वर्कर्स आर प्रोटेक्टेड बाय ओसा रेगुलेशन विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, केवल कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के कोई भी इसके अंडर कवर हो सकता है। नंबर 1, पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड, ये उनको कवर नहीं करता जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। देन फैमिली फर्म को भी नहीं करता, अगर जॉइंटली किसी फैमिली में कोई फर्म खोल के काम कर रहे हैं तो उनको भी कवर नहीं करता। एंड थर्ड वन, गवर्नमेंट वर्कर्स विदाउट देयर ओन ओसा प्रोग्राम, ऐसे गवर्नमेंट वर्कर जिनका खुद का ओसा प्रोग्राम नहीं चलता है उनको भी ये कवर नहीं करता। इसके अतिरिक्त ये सभी प्राइवेट सेक्टर्स या गवर्नमेंट सेक्टर्स या फेडरल एजेंसीज के वर्कर्स को कवर करता है। व्हाट आर दी ओसा इंस्पेक्शन एक्टिविटीज, इनकी इंस्पेक्शन की एक्टिविटीज कैसे होती है? नंबर 1, रैंडम इंस्पेक्शन, ओसा जो भी इंस्पेक्शन करता है वो रैंडम होता है विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन। देन कंडक्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी वर्क प्लेस पे तो वो वहाँ पे उसका इन्वेस्टिगेशन करता है, व्हाट वर दी कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, या वहाँ पे क्या कमियाँ रह गई, उनकी वजह क्या थी, उसके इन्वेस्टिगेशन करता है। देन कंडक्ट ऑन साइट एंड रिमोट इन्वेस्टिगेशन। ओसा इंस्पेक्शन प्रायोरिटीज क्या है? ओसा अगर इंस्पेक्शन करता है तो उसकी प्रायोरिटीज क्या होती है? सबसे पहले तो इमिनेंट डेंजर सिचुएशन, यानी कि प्रोक्सीमेटली डेंजरस सिचुएशन वहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या संभावित खतरे हैं उसका पता लगाता है। देन फेटिलिटीज, वहाँ पे जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी क्या क्या मुसीबतें हैं, कौन कौन सी कठिनाइयाँ उनके सामने आ रही हैं, और फेटिलिटी सिचुएशन क्या क्या है उनका पता लगाता है। देन वर्कर्स कंप्लेंट्स एंड रेफरल्स, वर्कर्स कंप्लेन को बहुत सीरियस लेता है ओसा। आप अगर कोई वर्कर है वो कोई भी कंप्लेन कर सकता है बाय फोन, बाय मेल और बाय फैक्स, या तो फॉर्मल कंप्लेन हो सकती है, अगर कोई वर्कर चाहे अपना नाम दे सकता है, सो इट कुड बी फॉर्मल विद द नेम, बट नेम ऑलवेज बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। इफ अ पर्सन वांट टू रिमेन anonymous, it does not give his name and consider the complaint as non formal, अगर वो अपना नाम नहीं देना चाहता है तो उनकी जो कंप्लेन है वो एज ए नॉन फॉर्मल कंसिडर की जाएगी। देन फोर्थ इज इंडस्ट्रीज विद हाई इलनेस एंड इंजरी रेट्स, ऐसी इंडस्ट्रीज का पता लगाता है जहाँ पे इलनेस बहुत है या जहाँ पे इंजरीज की जो रेट है, जो दर है, बहुत ज़्यादा है। देन फॉलो अप इंस्पेक्शन, ऐसा नहीं है कि एक बार उनका पता लगाने के बाद वो फॉलो अप नहीं करता है, तो दे कम टू गिव यू फैसिलिटीज, देन अगेन दे कम फॉर द फॉलो अप इंस्पेक्शन। अगर एक बार उन्होंने आपको फैसिलिटीज दी हैं तो उसके बाद वो फॉलो अप भी करता है। देन कंसल्टेशन प्रोग्राम चलाता है, प्रोवाइड असिस्टेंस, कोई भी किसी भी तरीके की सहायता देता है, फ्री कंप्लाइंस हेल्प देता है, निःशुल्क सहायता देता है आपको विदाउट एनी फीस, और आपकी जो भी सहायता की जाती है इट केप्ट वेरी 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 कॉन्फिडेंशियल। ओके।
Okay, so this is all about the OSHA. Thank